गया हूँ। क्या मैं वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। अच्छा, मतलब जब मार्क जकरबर्ग भाई जब ये मैसेज भेजते हैं तब मुझे पता चलता है कि मतलब लाइव हूँ मैं, और मतलब अभी मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छा, तो मतलब पहले ही हमारी गेस्ट आ चुकी हैं। ओके, सो लेट मी बी हियर। या, आज बहुत ही मजा आने वाला है बिकॉज दिस इज द I'll be asking some of the questions which I am getting very regularly. Hello, Pallavi ma'am. Namaste. Thank you Hello, very much. namaskar. My pleasure. Thank you so much for inviting me. Thank you, Pallavi ma'am. It means a lot. और मतलब आप टाइम पे थी, मैं लेट था, वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट बहुत सारे मैं क्वेश्चन टाइम मैंने की बहुत मतलब पक्की हूँ actually. Not your या fault. एग्जैक्टली, फुल कम्प्लीटली माय फॉल्ट। ऑडियंस वेरी सॉरी। हेलो अनिल भाई, कैसे हो? ओके, बट बाय द वे, जब मैं आपके आज प्रोफाइल चेक कर रहा था, बिकॉज बिफोर गोइंग टू एनी लाइव आई चेक द गेस्ट प्रोफाइल, तब मुझे लगा कि मतलब आप तो मतलब ओशन ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना, मतलब उस टाइप के हो। तो मुझे लगा ऐसा कि मतलब एटलीस्ट 10 लाइव तो करने पड़ेंगे पूरा मतलब And to नॉलेज be लेने के लिए। honest, जब हमारा ये लाइव का हम डिसाइड कर रहे थे and I asked you about the topic, I literally went through in detail क्योंकि मुझे पता था मुझे आपके साथ लाइव आना है and I will be questioned. तो मेरे पास उसके आंसर होने चाहिए. So I should be very very particular and in detail because I saw your few of the reels and the lives and they are brilliant, brilliant. Thank you, Pallavi ma'am. But I have a very great friend of mine called Pallavi ma'am. No, she will help you with regards to that. Yeah, I've taken a consultation from her. उसी के बाद Okay, मैंने that's great. करेज जुटाया actually. Acha, okay. So, okay, ma'am. Actually, heads off to you for many reasons, which I'll be telling you in the coming time. But हमारी मतलब ऑडियंस को मतलब आप एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, मतलब व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन? जी बिल्कुल. Firstly, I can see the Anil's comment, so thank you, Anil. Anil and me are linked on Insta also. And what about me? I'm a mental wellness coach. If I define myself in one statement, I handle modalities like NLP, neuro linguistic programming, emotion freedom technique, that's EFT, and emotion code Okay. healing. So these three are my basic modalities जिस पर मैं कोशिश करती हूँ लोगों की मदद करने की, to handle their own problems and to come out of them with more grace and poise. And I've learned Okay. hypnosis also, and I'm learning clinical psychology as well to be more scientific and precise. And not to mention, not to forget to mention, I run my YouTube channel also on the same Okay. line, mental wellness पर, because आज भी हमारे देश में mental wellness is a stigma. People are not very willing to Exactly, come ma'am. up. एंड इसलिए मैंने मेंटल इलनेस से मेंटल वेलनेस किया सो दैट पीपल एटलीस्ट फील लिटिल गुड कि हर बीमारी बीमारी नहीं होती एंड इट इज नॉट अ टैबू. So you have Yes. to come up, you have to be open to share your no sorrow, your journey, so that people can learn from you. So that's it. Okay. And on personal level, I'm happily married. I'm blessed with a son. He's 5 years old now, and all doing good. ओके मतलब ईच वर्ड ऑफ योर्स, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब होता है ना, इंट्रोडक्शन में मतलब मैंने बहुत सारे इंट्रोडक्शन सुने हैं, मतलब मेन एक इंट्रोडक्शन होता है, जो मेन पार्ट होता है, मेन उसकी अचीवमेंट होते हैं, हेड्स ऑफ टू दैट फॉर दैट, बट यू आर लाइक ईच अचीवमेंट वाज लाइक इमोशनल के मामले में, वेलनेस के मामले में, एज अ मदर एंड लॉट मदरिंग, सो मतलब लाइक पता है रियली क्या ग्रेट। होता है, ओके। योर लाइफ हाँ। टीचर्स यू एक्चुअली अ लॉट. तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अच्छा आप सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, आप इतना भी कर सकते हैं, फिर इतना कर सकते हैं, फिर इतना कर सकते हैं. तो धीरे ओके धीरे समझ आता है एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग. तो वही कर रही Okay, हूँ that's a मैं. very great thing, ma'am. Actually, ma'am, I just wanted to ask you. Okay, that's a follow-up question later on. First, I'll ask you like, normally जो फील्ड में आप हो अभी, नॉर्मली मतलब लड़कियां वहां पे नहीं जाती थी इन द इनिशियल टाइम, नॉर्मली कन्वेंशनल नहीं था, ये अनकन्वेंशनल फील्ड है करंटली, एंड इवन यू सेड दैट इट्स लाइक अभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता नॉर्मली वहां पे जाना. हाँ हाँ मेंटल, हाँ So like करेक्ट. how you thought like to be to go there and learn there and be there?
ओके आई थिंक मेरी जर्नी अब अगर मेंटल वेलनेस में शुरू हुई है, सो आई गेस आई एम अ लाइव एग्जांपल कि मैं भी उस कन्वेंशनल पीरियड से निकली हूँ जहां माय पेरेंट्स हैव सेड कि बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, गो फॉर साइंस, ये साइकोलॉजी वाइकोलॉजी मत करो, देयर इज नो फ्यूचर इन दैट. So I was also ओके going through, I had gone through that because हमारे घर में भी ये था कि इंटेलिजेंट हो, अच्छे स्कोर आए, साइंस पढ़ो. यू ना, साइंस एक्चुअली क्रेडिट्स यू द मोर इंटेलिजेंस. तो या वो ही किया. आई एम एन एमबीए एचआर आल्सो बाय प्रोफेशन. फिर मैंने 5 साल कॉर्पोरेट जॉब किया, देन आई गॉट मैरिड. उसके बाद व्हेन आई वाज माई सेल्फ, ऐसा कहना चाहिए, व्हेन आई हैव दिस अथॉरिटी टू चूज माई लाइफ, आई चूज साइकोलॉजी. बिकॉज मेरे को हमेशा से लगता था इमोशंस इतने डीप होते हैं ना. और मैं हमेशा से बहुत इंस्टिगेट होती थी कि जो चीज मुझे अच्छी या बुरी लग रही है, या जो चीज मैं फील कर पा रही हूँ, वो सामने वाला क्यों नहीं कर पा रहा. व्हाट इज द डिफरेंस. या जो सामने वाला सोच पा रहा है वो मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ, नो. तो ओके क्या वायरिंग का क्या क्या डिफरेंस है. सो दैट हैड मेड मी गॉट इनटू दिस. मुझे इंटरेस्ट ओके आने लगा. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, जब मुझे अथॉरिटी मिली कि मैं चूज कर सकती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आ गई इसमें. और अब आई थिंक थिंग्स हैव ओके बीन चेंजिंग. देयर आर लॉट ऑफ लेडीज, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु आर कमिंग अप इन दिस फील्ड, हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. आई गेस आप अगर आप सीनियर प्रोफेसर्स को देखेंगे, तो देयर लॉट ऑफ लेडी प्रोफेसर्स हु आर नो studying actually psychology, or who are teaching psychology, ऐसा बोलना चाहिए. Yeah, exactly. So that's very great to hear that curiosity made you go there. Like, it's a very Yes, interesting thing. absolutely. Yes, sir, please take my name, sir. अच्छा, this is Aman Shukla, sir. ये मतलब बहुत अच्छा है, इनको Hi, फॉलो करो. Aman. He's pulling I like your legs. fun Okay, of fine. promoting anyway. सबको सबको मदद करते चलो. Actually, Santosh does that more, but this I'm like Omkar. Oh, I've not Okay. seen Santosh yet, but I've heard a lot about Santosh. So I guess I really have to go to your profile and actually peep in who is Santosh and what is he doing. Yeah, he might take you live next time, by the way. But let's see how it happens. Okay, True, true. Santosh is a little bit like mediocre person. He's a Pure और typical mediocre mediocre guy. यार. हम सब वैसे ही हैं. No, okay. So you have not seen Santosh now, right now. हाँ, That's why बिल्कुल you're भी saying. नहीं. हाँ, एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल संतोष का आइडिया नहीं है. बट मीडियोकर तो Okay. हम सब हैं यार. आई थिंक वो हाँ. स्पेशल होगा शायद. समथिंग ओके डिफरेंट. ओके या माइट बी और मैं वैसे भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी अभी बहुत नर्वस हो गया बिकॉज मतलब क्या होगा नहीं होगा यस आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट बट लेट्स सी यू ओके आर बाय द यू वे आर मैम मेकिंग मी प्रेशर्ड बाय द वे. मैंने सुबह भी बोला था. इतना चढ़ा दिया. वहां तक अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं पहुंची तो गड़बड़ हो नहीं नहीं जाएगी. डेफिनेटली पहुंचेगी मैम बिकॉज दिस इज द वेरी रेलेवेंट टॉपिक of यस. 2020 right now because ट्रू. many people are facing this thing especially the comment which have been first generation entrepreneurship many are coming on entrepreneurship और मतलब अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो उसको कोई प्रेशर उतना नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज बट अगर हमारे मतलब पापा या मतलब परदादा वगैरह कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है एंड वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद किया है तो लाइक वी आर लाइक मतलब स्ट्रेसफुल होते हैं सो लाइक मैम actually by going deep into this I just have a personal question to you like you are into so many things and these are going on right now the thing is if you are very good in many things you are matlab, like, you are making it difficult to monetize that stuff do you really want to go micro niche with these things or you are happy with these things which you are know right now ओके, टू बी ऑनेस्ट ओमकार, एंटरप्रेन्योरशिप का तो मुझे ज्यादा नहीं पता. माय विजन इज वेरी क्लियर दैट आई एम हियर टू सर्व पीपल. आई एम हियर टू हेल्प देम गेट ओवर विद देयर मेंटल इलनेसेस और मेंटल रीजंस. तो उसके लिए okay मुझे लगता था, और अभी भी लगता है वेरी स्ट्रांगली, दैट आई शुड हैव टूल्स. अगर मैं एक ही मोडालिटी पे रहूंगी या मैं एक ही सेट ऑफ जॉनर पे रहूंगी, तो आई वुड बी लिमिटेड. इसलिए मैंने अपने आप yeah को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आई ओनली गो फॉर फर्स्ट टाइम मदर्स, या नो हाउस वाइफ्स, या एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस कोच.
So I do not want to tag myself with that कि मैं कॉन्फिडेंस पर ही काम करूंगी या मैं सिर्फ उनके ना ट्रॉमा हीलिंग पर ही काम करूंगी. So या far I have not decided. I may be wrong later, शायद मुझे लगे कि नहीं मुझे माइक्रो नीश पकड़ना चाहिए. बट अभी मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जितना लोगों से मिल रही हूँ, जितना मैं उनको सिखा रही हूँ, बहुत कुछ मैं उनसे सीख रही हूँ. बहुत हाँ कुछ. एवरी केस, ओके एवरी पर्सन इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी स्पेशल. सबका हैंडलिंग एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट होता है. तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट माय अप्रोच इज कि मुझे अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. जैसे मैं अभी आपके साथ लाइव कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ क्यूज नो, कैसे हैंडल करना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं या बोलना है. तो अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं अपने आप को, सो दैट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी. या एग्जैक्टली ऐसा मैम मुझे लगता एग्जैक्टली है, मे बी रॉन्ग. बट अभी तो मुझे ऐसा लगता है. नो बिकॉज नो लगता है मैम बिकॉज माई niche is currently mind, everything with regards to mind or what happens, psychology, spirituality. So even I am not able to decide the micro niche in mind. अगर हाँ मैं इमोशंस को पकड़ूं या साइकोलॉजी को पकड़ूं या मतलब समझ हाँ नहीं आ रहा विद रिगार्ड्स टू माइंड. डिजिटल करेक्ट. मार्केटिंग में क्या होता है कि मैं एक और डिजिटल मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी चूज करता हूं या किसी चूज कर सकते हैं, बट विद रिगार्ड्स टू माइंड इज लाइक एंड आप ब्रॉड लोगों का थिंग. तो इतना टेक्निकल और इतना डिटेल्ड है, मुझे तो जीरो भी नॉलेज नहीं है. मतलब मैं माइनस में हूँ व्हेन इट कम्स टू अच्छा मैम डिजिटल मॉडर्न थिंग. स्टोरी है, पल्लवी No, मैम that's मॉडर्न true. स्टोरी. No. I'm very good in my own field. बट when it comes to technology, मुझे आई थिंक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए भी मैंने गूगल पे सर्च किया था कि अच्छा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. इंस्टाग्राम पे लाइव कैसे जाना है, मैंने फर्स्ट लाइव के लिए उनसे मांगा था मदद, सेलेना से, कि नो हाउ टू गो ओके टू लाइव, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मैं कैसे आऊंगी. मुझे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा, देन यू विल एक्सेप्ट मी. I didn't know about that. So I'm still या learning इट all हैपेंस that. इट हैपेंस. और Yeah. मतलब लेट स्टार्ट जब हम करते हैं, यू नो इवन माय मॉम इज स्टिल लाइक आई एम 25. मुझे लगा कुछ जब यहाँ पे 18-19 साल के बच्चे मुझे दिखे तो आई वाज लाइक अच्छा Seriously. मैं मतलब देर से आया. अरे इवन मतलब मैं तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में हूँ ओमकार. ऑल यू गर्ल्स एंड दी बॉयज दीदी दीदी कह के मुझे बोल रहे यू आर डूइंग गुड दीदी. मैं मतलब आंटी या हो गई बट हूँ मैं तुम्हारे लिए. नहीं बट रियली नॉट नॉट आंटी बट रियली आई एम सेइंग कि when I saw you as a 24 or 23 maybe. Then you told that you are a mother and all. That's a different thing. But what ये लाइव का बेस्ट inspires है, me. इसका रील बनाया जाए, इसको लाइव पे लगातार डाला जाए. दैट्स द बेस्ट थिंग. Yeah, you can cut it afterwards. Actually, I saw Dinesh Mohan. There is a person called Dinesh Mohan. I hope you know him. But he's like right now 68 or something, and he's like India's one of the top model at the age of 68. So मॉडल, तब फैशन मुझे मॉडल. लगता है या फैशन मॉडल. ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 65. बिफोर दैट ही वाज लाइक उसकी लाइफ बहुत वर्स्ट चल रही थी. 65 पे उसने स्टार्ट किया. सो मुझे लगता है अच्छा 65 आई एम 25 ओके तो आई एग्जैक्टली. हैव. I think till the last breath of our life, we should live, and there is या nothing called late concept. वो लेट या का कोई एग्जैक्टली मैम. कॉन्सेप्ट है ही नहीं. आपका जब मन बन गया, जब आपने ठान लिया कि आपको करना है, वहीं से स्टार्ट है. लाइक फॉर मी, मेरा ये साइकोलॉजी जर्नी इट्स हार्डली स्टार्टेड 2-3 years बैक. मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब ओके भी किया, मैंने अपना पढ़ाई भी किया, सब एंजॉय करके अभी मुझे लगा कि अच्छा नाउ आई शुड फॉलो माय डिजायर्स, माय ड्रीम्स, माय इनर कॉल. तो मैं अब आई हूँ इसमें. इफ आई वुड हैव ओके स्टार्टेड बिफोर 10 साल पहले, 15 साल पहले, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. अभी तो ओके कंपटीशन से लेकर टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज वेरी चेंज्ड. या सो यू नो या completely agree थिंग्स, with that thing. हाँ, थिंग्स डू चेंज अ लॉट. Yes, ma'am. Yeah, well, I completely agree with this thing. And ma'am, actually, we have a thing. I don't know you experience that कि जैसे आप जिस फील्ड में हो, मतलब मैं मीडियोकर अगर बात करता हूँ, अगर मीडियोकर किसी के ओर से सोचता हूँ तो हमारे पहले में क्या होता था, बचपन में मैं भी सोचता था कि कोई भी साइकेट्रिस्ट या मतलब दिमाग की किसी भी यहाँ पे जाता है तो मतलब उसका मतलब गया, वो पागल गया है. है इसलिए वो जा रहा है, पागल है पागल इसलिए है. गया है. So like in the recent times movies like I like Love You Zindagi and all, पता चलने लगा कि मतलब थोड़ा अलग है, शाहरुख खान टाइप लोग होते हैं. So वैसे ही होते हैं,
वो ही होते हैं एक्चुअली। व्हेन यू कंसल्ट एनी कोच, उसने वो कोई डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट दूसरी दुनिया से नहीं आया, या वो आपको वो क्या बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देने वाला है बैठा के कि तुम्हारे कुछ वायरिंग का इशू है, चलो बैठ जाओ लेट जाओ। ऐसा नहीं होता है। दैट हैपेंस ओनली फॉर द वेरी वेरी एक्सक्लूसिव केसेस, और जिनको ओके एक्चुअली जो अनक्यूरेबल हो जाते हैं, जिनको मेडिकल एलिमेंट की जरूरत ही पड़ती है। बट इन 70 to 80% ऑफ आर केसेस, आप काउंसलिंग से या थेरेपी से आप उस नो चीज से बाहर आ सकते हो। बट यस, ये ओके। मिथ बहुत बड़ी है और इतनी स्ट्रांगली रूटेड है इवन एट माय ओन हाँ, फैमिली। व्हेन आई हैव सेड माय सिस्टर, इससे मुझे याद आया, माय ओन सिस्टर, उसको एक्चुअली बोला माय कि मैं क्वेश्चन वाज दैट हाँ क्या, कि हाउ योर फैमिली रिएक्टेड टू योर डिसीजन। माय फैमिली सेज तू खुद पागल है पागलों का इलाज कर। ओके। My family knows that I'm very different. मैं कुछ अलग हर टाइम कुछ नया दिमाग में मेरे कीड़ा आ जाता है, and I try to explore that, and I never ओके। actually back off easily. मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं एक बार ओके। ट्राई तो करूंगी, चाहे अभी नहीं या करूंगी, थोड़ी देर में करूंगी करूंगी। So when I've learned hypnosis, और मैंने दीदी को बोला, my own sister, I'm going to show her this reel, और वो मेरा गला दबा देगी उससे मैंने उसको बोला कि मैं आप पे ट्राई करती हूँ, एंड इट्स गुड, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज वी कैन गो बैक टू योर चाइल्डहुड एंड देन वी कैन सी व्हाट हैड हैपेंड। तो बोलते हैं मैं तेरे से बिल्कुल नहीं कराऊंगी, पता चला तूने मुझे वहीं पे लॉक कर दिया और मैं बच्ची रह गई तो। मैंने कहा आर यू क्रेजी और व्हाट, ऐसा कुछ नहीं होता हिप्नोसिस में। मैं उठ ही नहीं पाई, मैं कोमा में चली गई, ऑल दैट बुलशिट शी वाज टेलिंग मी। मैंने बोला दीदी क्या, ऐसा कुछ नहीं होता हिप्नोसिस, मैंने उस टीवी में देखा था, उस मूवी में देखा था, ऐसा हो जाता है वैसे हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं होता है, दिस इज ऑल दी myths or the lies which are spreading around. या हिप्नोसिस में भी अगर आप नहीं आते हो ना, अगर क्लाइंट भूल, कंसल्टेंट भूल जाता है, आपका हिप्नोटिस भूल जाता है, आप 1 से 2 मिनट के बाद यू विल कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली। सो अच्छा। देर इज नथिंग कॉल्ड डीप कोमा इन ड्यूरिंग हिप्नोसिस, दैट नेवर हैपेंस। ओके। या ओके। ये मतलब आपने बहुत अच्छी बात मतलब बोली, बिकॉज इवन आई पर्सनली हैड द थिंग विद रिगार्ड्स टू हिप्नोसिस कि मतलब टीवी सीरियल्स वही देखा है, और हाँ सब्जेक्ट तो बीकॉम का था, तो मतलब वहां पे हाँ कुछ पॉइंट ही नहीं था। तो अब मुझे हाँ। पता चला कि यू नो राइट नाउ यू सेड कि आफ्टर 15 मिनट्स और समथिंग पर्सन कैन गेट हिज सेंसेस बैक विदाउट टू लाइक टू थ्री एक्सटर्नल फोर्स। मिनट्स नॉट इवन 15 मिनट्स, 2 to 3 अच्छा टू। मिनट्स अगर मैंने आपको ओके। कॉल दे दिया है, से फॉर इंस्टेंस मैं आप पे ट्राई कर रही हूँ, और मैंने अगर आप, कैन यू हियर मी, या या ओके, सो अगर मैं आप पर कर रही हूँ और मैंने आपको कॉल किया है अवेक का, और आप तब भी नहीं उठ रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन दैट यू आर स्टिल इन द डीप स्टेट ऑफ दैट इमोशन। और आप 2 से 3 मिनट बाद अपने आप कॉन्शियस में वापस आ जाओगे द मोमेंट योर माइंड प्रोसेसेस माई ऑर्डर, क्योंकि मैं आपको वो ओके। ऑर्डर दी हूँ उस टाइम। सो ऐसा ओके। कोमा या आप उसी इल्यूजन में डिल्यूजन में घूम रहे होगे और वो बच्चा बन के ही घूम रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन पीपल आर ओके। सो स्कैर्ड, आई डोंट नो व्हाई। बट हाँ, या बिकॉज आप देखते हो मूवीज में ना, वो क्रिस्टल के साथ हाँ। कर रहे हो और इमिडिएटली आप पीछे चले गए हो, ऐसा भी नहीं होता है। यू हैव टू बी इन अ वेरी क्वाइट एनवायरमेंट टू नो ओके। फोकस ऑन दैट। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 मिनट घुमाया और आप हो गए हिप्नोटाइज। हाँ Okay, okay. You know, I used to try that many a times. Like my father used to not buy chocolates for me in my childhood. I used to say, "Papa, just look at this." आई होप वो वर्क करता। नहीं, वो कर नहीं रहा था. Okay, so okay, back to the point. Back to the topic, ma'am. Actually, ma'am, I just wanted to ask you what exactly stress is and how it generates in human being. ओके, सो सी टेक्निकली बात करूंगी तो आई थिंक ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ मेयर एंजाइटी वेयर आर हॉर्मोन्स ट्रिगर। जब हमारे Okay, ब्रेन में एक वायरिंग होती है, एक हलचल होती है, बिकॉज ऑफ सम प्री कंसीव्ड नोशन, जो हम पहले से फियर ले लेते हैं या पैनिक अटैक्स ले लेते हैं, उससे वो स्ट्रेस जनरेट होता है। दैट कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जो जनरेट होता है, विच रेजेस okay, अप द स्ट्रेस लेवल। एंड okay, ड्यूरिंग दैट स्ट्रेस हमको साइड इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, लाइक यू आर स्वेटिंग, यू आर फंबलिंग, or you are indecisive about the things, then you are scared about the things. So they all are interrelated. आपके, okay, but majorly it is your preconceived set of notions
जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आता है, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन इन योर सबकॉन्शियस माइंड आपको ये पता है that that thing may give you a stress, that thing may say Okay. no to you, or that may lead to you some uncomfort. तो जैसे Okay. ही आपको वो नो या ना या नहीं या जो आपकी मर्जी का नहीं हो रहा है वो सुनाई देता है, that hits Okay. and the stress, the cortisol hormone starts raising up and you get the stress attack or the panic attacks, anxiety attacks. वो होता है। Okay. और आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज स्ट्रेस? हाँ, यही यही स्ट्रेस होता है, वेर Okay. यू आर Okay. अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। मोटा मोटा कह लेते हैं, स्ट्रेस या पैनिक चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डगमगा जाता है, जहां आपका Okay. फोकस लेवल डगमगा जाता है, जहां आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं या सेल्फ डाउट करने लगते हैं। दैट इज द स्ट्रेस विच इज कॉजिंग यू। Okay. Okay. So like you said कि मतलब पसीना आता है ना, many times it is like physical और mental कि मतलब पता Both. चलता है। Stress is अच्छा। mental. Stress is purely mental, but it gives you the symptoms, which is अच्छा। physical. Okay, यहाँ पे मैं एक point बताती हूँ. We are all connected, mind, body and soul. We three Yeah. are in one paradigm. इसमें से कुछ भी अलग नहीं। अगर फिजिकल भी आपको कुछ चोट होगा तो ऑफ कोर्स योर ब्रेन विल रिसीव दैट और आपको वो Yeah. पेन फील होता है। Yeah. सिमिलरली अगर आपके ब्रेन माइंड में कोई पेन है तो वो आपकी फिजिकल बॉडी में शो होगा। सो Yeah. दे बोथ आर कनेक्टेड। कोई भी चीज Okay. ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ आपको फील नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल। Okay. 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 So actually, I was planning to do a next live with you on a certain topic called soul because you know हाँ, मैंने पहली बार मतलब एक पर्सन को देखा जो आप हो, लाइक जो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट वगैरह, आई हैव नॉट हर्ड एनी साइकेट्रिस्ट टॉकिंग अबाउट सोल और समथिंग लाइक दैट, एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना। आई हैव हर्ड अबाउट मेंटल, फिजिकल और वॉट एवर। सो मतलब वो क्वेश्चन आता है कि आप बिलीव करती हो नहीं करती हो, बट दैट्स अ ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस लेटर ऑन। because I'm a psychologist, I'm not a psychiatrist, and there is a huge difference. Huge difference. ओके। Okay, ह्यूज। psychiatrist, हाँ, huge मतलब huge. Psychiatrists are जो chronic mental illness से deal करते हैं, and they are purely scientific. They don't ओके। work on subconscious mind concept. क्योंकि वो मेडिकल, जैसे आप डॉक्टर्स को ले लीजिए, डॉक्टर्स ओनली हाँ। गो फॉर मेडिसिन ना, या। वो इसके अलावा और किसी चीज या थेरेपीज में बिलीव नहीं करते, साइंस बिलीव नहीं करती कि दो अब बिलीव करने लगी है दैट ग्रेटिट्यूड आल्सो इफेक्ट्स, प्लेसेबो इफेक्ट हो गया, प्रेटफॉल इफेक्ट्स हो गए, अब साइंस बिलीव करती है और उसने प्रूव किया है। बट जनरली मेडिसिन डजंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, जिसको या। हम contemporary healings बोलते हैं। तो psychologists ओके। are also the mind doctors, sorry, psychiatrists are the mind doctors, ऐसे मान लेते हैं। तो ओके। दे आर प्योरली साइंटिफिक, दे वर्क ऑन द कॉन्शियस माइंड। वो ओके। सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट उनकी पढ़ाई में है ही नहीं, अच्छा। इसलिए दे डोंट ओके। बिलीव। आई एम अ ओके। साइकोलॉजिस्ट, इसलिए आई नो दैट हमारा 90% ऑफ ब्रेन और आवर माइंड आई शुड से इज सबकॉन्शियस। जो हमारी या। मेमोरीज, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे ट्रॉमा, हमारा फियर, सब या। वहीं स्टोर्ड है। और वो या। ट्रिगर जब होता है किसी सिचुएशन से या किसी इंसान से, तब वो कॉन्शियस माइंड में आता है एंड देन इट गिव्स दी स्ट्रेस और एनीथिंग। हैप्पीनेस भी मान ओके। लेते हैं, सब खुशी और बुरा सब कुछ वहीं पर स्टोर्ड है। हाँ, एंड सबकॉन्शियस। सोल, हम ओके। एक्चुअली वी आर ओनली दी सोल, वी आर दी एनर्जी। या। हम ये तो सिर्फ दिस इज ओनली, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो सिर्फ एक चोला है जो हमने पहना है ना, स्पिरिचुअल लीडर्स डू से दैट ऑब्वियस, यस but यस। that's true. We are pure energy, we are pure soul, या। and rest is all the modification so that हम physical world में लोगों से interact कर पाए, अपनी एग्जैक्टली मैम। identity पहचान पाए, उस पे काम कर पाए। एग्जैक्टली मैम, आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू एंड I hope यू I'm नो। making sense. आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैम क्या बात कर रही है, ये सर के ऊपर से निकल नहीं रहा है। नहीं, मतलब एक्चुअली पल्लवी मैम आप मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू दैट spiritual process and all because I'm facing experiencing many things right now these days, last 6-7 months with regards to spirituality and clarity and all. That's why I've typed clarity over there. So point is ki I completely agree with you. So this is a like interesting topic to discuss, but right now we'll discuss about like
मतलब stress, you told about stress ki how it generates or something, but normally at a young age, the time especially 11 12 or till 2022 maybe, जो एज होती है लाइक एंजॉइंग यंग हैप्पी गो लकी टाइप, यहाँ पे अभी स्ट्रेस दिखने लगा है इन रिसेंट टाइम्स इस एज ग्रुप में भी. सो व्हाट इज द थिंग रीजन यू थिंक कि इस एज ग्रुप में स्ट्रेस आ गया? ओके, स्ट्रेस के बहुत से कारण हो सकते हैं. अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं, सो उनका मेन इज द पेरेंटिंग. द रीजन बिहाइंड देयर स्ट्रेस इज पेरेंटिंग. Because whenever a child is born, it is completely whole. उसको stress, competition, jealousy ये सब नहीं पता होते. Due to या the environmental conditioning, जिस माहौल में वो पल बढ़ रहा है, जिस जैसे लोगों से वो मिल रहा है, उससे उसकी thought processes shape होती है. And then it comes into the competition. आजकल mainly competition is about the schooling. शर्मा या जी के बेटे का 99% आया है, तुम्हारा कैसे नहीं आया? So your या own parents will question you about your या own talent and capabilities. तो जिस जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, and which is endless, या तो स्ट्रेस होना तो इज वेरी वेरी ऑब्वियस. एंड टिल 15 years ऑफ एज बच्चे की पर्सनालिटी शेप हो रही होती है, उनके बिलीफ, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके थॉट्स शेप अप हो अच्छा. रहे होते हैं. तो उन पर स्ट्रेस होना बहुत लाजमी है. बिकॉज ओके. they are under their parents influence and whatever they say it is right, but of course deep down their side they know कि वो उनको मैच नहीं कर पा रहा है. या ओके, जैसे मैंने स्ट्रेस, पढ़ाई के स्ट्रेस का दिया, या स्पोर्ट्स ले लेते हैं कि नहीं तुम इतना नहीं खेलोगे, या यही स्पोर्ट्स खेलोगे, या ये नहीं खेलोगे, इससे बात करोगे क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया तो उनके बच्चे से आप नहीं मिलोगे. नो, बिकॉज इट्स ऑल ओके. बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंटिंग. या उसके बाद आप एडोलेसेंट एज में आते हो, when there is a stark difference biologically also, physically also and emotionally also. तो या वो रेगुलेट कर पाना फॉर अ चाइल्ड इज लिटिल डिफिकल्ट. एंड बिकॉज ऑफ आवर इंडियन पेरेंटिंग, हम लोग वी आर मोर अथॉरिटेटिव विद आवर kids instead of या being more polite and being more good फ्रेंडली. with them or being more friendly with them. We like to dictate them क्योंकि या हमने अपनी जिंदगी बहुत देखी है और हमें पता है कि ऐसा ही होता है, तो हमारे बच्चे को तो ऐसा ही करना है. दैट्स हाउ, या दिस इज द पैटर्न विच इज रनिंग. तो स्ट्रेस होना, जब आपके क्लैशेस होंगे, जब आप किसी को हर्ट कर रहे हो या आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तो स्ट्रेस होना लाजमी है. या एंड आफ्टर 18 you are still not free to choose whatever you want to. You are still under your या parents. जब कमाने लग या जाओ तब अपनी मर्जी का करना, या जब घर से चले जाओ तब अपनी मर्जी का करना. So you या get all emotional tantrums from your parents. या तो स्ट्रेस तो होना ही होना है. एग्जैक्टली. ओके, सो यू गिव अ ग्रेट पॉइंट एक्चुअली, कि मतलब पेरेंटिंग का मतलब अगर ठीक ठाक हो जाए टिल 15, एटलीस्ट मिनिमम एटलीस्ट 15, फाउंडेशन, तो इम्पैक्ट मतलब आगे चल के बहुत अच्छा पड़ता है उसके बारे में. दैट्स द फाउंडेशन. ओके. पेरेंटिंग इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. पेरेंट्स आर समवन जिनकी इम्पोर्टेंस हम किसी भी एज में डिनाई नहीं कर सकते. इवन एट दिस या एज आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी विद मी, या मैं अभी भी उनसे या कंसल्ट करती हूँ, जबकि शायद मुझे पता है कि वो समझ ही नहीं पाएंगे, बट आई स्टिल वॉन्ट टू अप्रोच देम. तो पेरेंट्स की ओके. इम्पोर्टेंस हम डिनाई नहीं कर सकते. बट 15 साल तक एटलीस्ट बच्चों की पेरेंटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी अच्छी होती है उतना ही उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दे कैन हैंडल द या थिंग्स लेटर इजीली. ओके. ओके, ये बहुत ही मतलब डीप बात कही है आपने. I'll ask some of the questions and then I'll ask हाँ जी. a question on parenting only. Okay, by the way, मैम, with regards to young generation जो अभी हो रही है, they are starting with entrepreneurship, first generation जो होता है, और definitely we don't have a blueprint to success. Like True. in normally like जॉब में क्या होता है कि पता है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगेगी, देन लाइक मैरिज एंड ऑल, देन लाइक 60 बरस का हमको प्लान होता है, 60 पे रिटायरमेंट, ब्लूप्रिंट होता है. बट विद रिगार्ड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट जनरेशन, ब्लूप्रिंट नहीं होता है वहां पे. तो वो Absolutely. लाइक वहां से स्ट्रेस क्यों होता है? देखो, लैक ऑफ अगर क्लैरिटी से. let's go with the characteristics of entrepreneurship, especially the first generation entrepreneurs जो young हैं. Actually that's a second name of new entrepreneurs, the young entrepreneurs जिनकी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, और वो या पहले वाले हैं जिन्होंने झंडा उठाया है. तो
उनके लिए what all characteristics are important? मतलब आप भी मुझे बताना है, मे बी रॉन्ग। आई थिंक दे शुड बी हाईली हाईली ड्रिवन, उनका पैशन शुड बी एट पार, उनकी या लर्निंग स्किल्स, उनकी नॉलेज, देयर सेल्फ मोटिवेशन, बिकॉज फैमिली में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, दे नो। और या उनके आई थिंक क्लोज नेट सर्कल में भी कोई नहीं होगा जो नो बिजनेस में आ रहा है। या रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, विच इज या आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यस बट हाउएवर जब आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, जिसमें आपने ग्रूमिंग की है बचपन से, तो यू नो दैट यू आर एट योर कंफर्ट जोन। आपको 9 to 5 या काम करना है, या 5 से अगर ओवर टाइम भी करना है, तो यू आर एट द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस। उसने जितना बोला है आपको वो डेडलाइन खत्म करके देनी है। सो प्रैक्टिकली यस देयर आर नो रिस्क इन्वॉल्व। तो या आपने वो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, आपने अपने मम्मी को, पापा को, अपने चाचा को, ताऊ को, पड़ोस में सबको यही देखा है करते हुए। So you या know how comfortable it is. So या you are also comfortable. Stress आने ही ओके आना है when you know that you are now at a ओके field जहां आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपकी फैमिली हैज नो नॉलेज फर्स्टली, अगर वो आपको या सपोर्ट भी कर रही है तो। और सेकंड या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स फेस कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव अ सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, तो एक इमोशनल स्ट्रेस या भी बनता है, बिकॉज उनको हाँ लगता है कि इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट सिक्योर। एटलीस्ट प्राइवेट जॉब ही है, बट नो महीने के एंड में पैसे तो आ रहे हैं, हाउ विल यू रन योर यस यस फैमिली? कुछ गलत हो गया तो कैसे चलेगा? नो यस फंडिंग, वी आर मीडियोकर पीपल, वी आर मिडिल क्लास सर्विस क्लास पीपल। यस तो वो इमोशनल स्ट्रेस आना इज वेरी वेरी ऑब्वियस। एंड ऑफ या कोर्स अगर जब आपके आइडियाज नहीं चलते हैं, जो आपने सोचा है, आपका जो विजन है वो मार्केट में नहीं आया, नो या हिट नहीं हुआ, या आपका जो आपने सोचा था वो वैसा वर्क नहीं हुआ, तो यू आर चैलेंज नाउ। यू नो या दैट आपको आपका फंडिंग भी गया है, आपका एफर्ट्स भी गए हैं, और अब आपको फैमिली से भी पड़ने वाली है। तो या स्ट्रेस होना ही होना है पूरी तरीके से। सो दैट्स हाउ ओके इट इज। तो जो ओके यंग ओके एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्हाट दे आर फेसिंग द मेजर challenges, they are causing them stress. ओके And now the competition is so high, so high. या Unless you have a very innovative idea, you are in a line only, या जिसमें 10 लोग पहले ही सेम तरीके की चीजें दे चुके हैं। तो या तो यस आप एग्जैक्टली उस भीड़ का हिस्सा बने हो, या अगर आप कुछ इनोवेटिव ट्राई कर रहे हो, तो फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन, यस वो एग्जैक्टली होंगे ही होंगे। बट जब उस फेलियर पीरियड में आपने अपने आप को कितना संभाला है और कितने आप बाउंस बैक कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसमें जो ओके फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो इमोशनल स्ट्रेस आपको होता है, वो आप कैसे बेयर कर पा रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस ओके सो लाइक उस टाइम पे मतलब मेन सपोर्ट या ऐसा जो आपने बोला है ओके सो एक्चुअली मैम विद रिगार्ड्स टू जो काम होता है विद रिगार्ड्स टू लाइक कभी कभी क्या होता है कि इट्स लाइक आई हैव अ वेरी गुड व्हीकल यू नो उसमें मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो मतलब वो बलून आता है और मतलब बाद में मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड पावरफुल स्पीडी व्हीकल बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द डेस्टिनेशन और करेक्ट। द वे तो वो मतलब क्या लगता है कि इसके पास ऑल्टो है और इसको डायरेक्शन पता है मेरे पास मर्सिडीज है फिर भी मुझे डायरेक्शन नहीं पता है करेक्ट। सो वो कभी कभी डायरेक्शन का मतलब होता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी सो हाउ टू डील मतलब जो स्ट्रेस होता है अनसर्टेनिटी की वजह से वो कैसे मतलब हम ओवरकम कर सकते हैं ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। कभी कभी हम लोग इतने इंथुजियास्टिक होते हैं अपने आइडियाज को लेके कि हम उसके प्रैक्टिकलिटी पे जाते ही नहीं कि वो कितना वायबल होगा। जैसे मैंने अभी अगर सोचा है कि मैं एक मेंटल वेलनेस का बहुत बड़ा सा ना स्टूडियो खोलूंगी, और मेरे ये प्रैक्टिशनर्स होंगे, ये मैं चार्ज करूंगी, बट अगर मैंने अपनी इंडियन मार्केट को सर्वे ही नहीं किया, तो मैं कितना या भी पैसा लगा लूं, आई विल बी अ बैंकक्रप्ट लेटर, बिकॉज या पीपल विल नॉट बी कमिंग इन, राइट? कंप्लीटली एग्री तो मुझे मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डिपेंड्स अपॉन माय रिसर्च और ऑन माय या नॉलेज। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स में मैं देख रही हूँ जो प्रॉब्लम है, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। आज से 5 साल बाद मेरे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर होगा।
बट शॉर्ट टर्म गोल्स पे वो जा ही नहीं रहे। क्वार्टर एग्जैक्टली। वाइज, 6 मंथ्स वाइज उनको कैसे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने हैं, दे आर नॉट श्योर। या और फिर जब यस उनको मैम। वो फेलियर आता है ना, देन दे गो क्लूलेस कि ये तो हमने यस सोचा ही नहीं था, मैम। ऐसे हो गया। एंड देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज, गवर्नमेंट रूल्स, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर्स, आपको सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप यस। सब पर काम नहीं करोगे तो बट ऑब्वियस है आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सेटबैक आएगा ही आएगा। आएगा आएगा। एंड इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग कि मैंने कहाँ गलती किया या मुझे अभी से कैसे सुधारना है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम। या उन्हीं का यही झोलमाल है, उन्होंने ही ऐसे करना था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। नो, वी स्टार्ट फाइंडिंग द एक्सक्यूजेस। तो यस आई मैम। थिंक जैसे आपने भी बोला कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज इम्पोर्टेंट, उसके साथ क्लैरिटी ऑफ प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस यस, कम्प्लीटली Short एग्री। term goals and the baby steps. I think या that can reduce your stress to a maximum level. Stress will not यस। be completely gone because every day is a new challenge, especially entrepreneurship में। या हर दिन एक नया दिन होता है। आज शायद आपकी बहुत सेल्स होगी, शायद कल ना हो। या फॉर इंस्टेंस या मैं बताती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा आज एक बहुत अच्छा वीडियो हिट हुआ है, कल नहीं हो रहा है। सो आई विल बी या डिसअपॉइंटेड कि मैंने मेहनत तो उतना ही किया था जितना या आज वाले पे किया, बट क्यों नहीं चला। सो आई विल बी अंडर स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ या फाइंडिंग कि शायद लोग पहले वाला कंटेंट ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मुझे वैसा कंटेंट बनाना है। नो, सो द ओके अप्रोच, द माइंडसेट, दैट डिटरमाइंस हाउ मच स्ट्रेस यू गोना हैव। ओके ओके। अप्रोच। ओके। सो ये मतलब कुछ नया पता चला। सो दैट इज द प्लानिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। सो लाइक मैम, विद रिगार्ड्स टू, अगर मतलब हम किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, लाइक मुझे माँ बाप के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे भाई बहन के लिए कुछ करना है, लाइक पति या मतलब वाइफ के लिए कुछ करना है। तो जब जिनके लिए कुछ करना होता है, ये इवन सोसाइटी में भी, लेकिन कभी कभी वहीं से जजमेंट्स आते हैं। लाइक मैं मेरी माँ के लिए बिजनेस खोल रहा हूँ, लेकिन माँ ही बोल रही है बिजनेस मत करो। तो लाइक मैं कंफ्यूज हो गया हूँ अभी। तो लाइक कंफ्यूजन लाइक दिस मेक्स लाइक जनरेट स्ट्रेस। आई थिंक अप्रोच की जहां हम अभी बात कर रहे थे, वहीं यहाँ पे पहला स्टेप ही नहीं आता है। बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी माँ के लिए कर रहे हो, आप अपनी माता जी के लिए कर रहे हो, बट माता जी इज नॉट विलिंग फॉर इट, सो देन देयर इज नो पॉइंट, राइट। या आपको फोकस होना चाहिए कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी ओके एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज मुझे किसी से कमांड्स नहीं लेने, आई विल बी गिविंग द ऑर्डर्स इफ आई हैव अ टीम। ओके। नो, सुपर। मेरे को अपनी स्किल्स बढ़ानी है, अपनी लीडरशिप स्किल्स बढ़ानी है, मुझे अपनी टीम स्टैब्लिश करनी है, अपना आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है, और आई गिव समथिंग टू द सोसाइटी, टू द नेशन। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, डू फॉर योरसेल्फ। या तो आपका विजन चेंज कंप्लीटली होगा, एग्री। आपका यस। अप्रोच भी चेंज होगा, और वो कंफ्यूजन भी कम होगा। बिकॉज दैट या गिल्ट यू विल नॉट बी हैविंग। या आप अगर फेल भी होगे तो आपको पता है, अच्छा आई ट्राइड माई बेस्ट फॉर माई सेल्फ, सो आई यस हैव मैम। लर्न। No, that's ओके that's most important. ओके। यस मैं कंप्लीटली अग्री विद दिस थिंग, बिकॉज जो अपने लिए अगर हम करते हैं देन वी आर इन कंट्रोल, आई फील, Exactly, कंपेयर टू दूसरों के exactly, लिए करते। exactly. ओके। और आई थिंक ये लाइफ मंत्रा होना चाहिए कि आप लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, योर प्रायोरिटी शुड बी यू फर्स्ट। That how you ओके। are taking care of your own emotions, your own sets of thinking, your own efforts. उससे या जब वो बोलते हैं ना, आप खुद खुश रहोगे तो ही आप दूसरों को खुशी दे पाओगे। तो आप एग्जैक्टली। खुद कंटेंट होंगे तो आप दूसरों को कंटेंटमेंट दे पाओगे, यू कैन स्प्रेड यस हैप्पीनेस। So यस that's very यस मैम। important to start, no, from within, from you. या ओके ओके मैम। सो लाइक ये बहुत थोड़ा बहुत अच्छा लगा। इस पे मैं मतलब 1 मिनट वीडियोस बनाऊंगा कट करके। ओके मैम। विद रिगार्ड्स टू, बहुत सारे लाइक 90, बहुत सारी टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जा रहे हैं, और वो टेक्निकल फील्ड बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन फिर भी उनका कभी क्वेश्चन ये नहीं होता कि काम का मतलब क्या करो। दे फील लाइक पेरेंट्स, जैसे आपने बोला है, मैं उसी को थोड़ा सा स्ट्रेस करके पूछता हूँ कि लाइक
हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो अगर हम दूसरों के लिए ही करना चाहिए, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर हम खुद के लिए सोचें तो डोंट यू थिंक वी माइट बिकम सेल्फिश? नहीं, that is the huge difference between selfish and self love, self care ओके and being selfish ही ले लेते हैं, वही सिंपल वर्ड है. It is like ओके वो, अच्छा मैं बताती हूँ what happens. हम बचपन से we have been actually groomed like this, we have been brought up या like this in a joint, in a cultural family, in a strong culture जो हमारे इंडिया का है, that social service, people service oriented, लोगों का सोचो, अपना लास्ट में सोचो. स्पेशली फॉर गर्ल्स आई गेस दिस इज दी गो टू लाइन्स, कि पहले सब आते हैं, उसके बाद यू थिंक अबाउट योर बार सेल्फ. बार अगर अगर आप अपने को पहले रखोगे तो यूल बी सेल्फिश, आप तो बहुत या मतलबी हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक आपको वो साइकिल रिवर्स करनी चाहिए. अगर आप अपने ओके बारे में पहले सोचोगे, आपको ये पता है कि इस चीज से मुझे खुशी मिलती है, इफ यू आर हैप्पी, तो डाउन द लाइन जितने भी लोग हैं यू विल स्प्रेड हैप्पीनेस ओनली बिकॉज यू आर कंटेंट. या क्योंकि यस आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई जेलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये कोई हीन भावना नहीं है कि मैं ये नहीं कर पाया या कर पाई. तो यू विल स्प्रेड दी हैप्पीनेस. और सेल्फिश आप तब होते हैं जब आप जान के किसी को हर्ट कर रहे हैं. ओके Okay, when you are causing a harm to someone in lieu of your own, under the name of your self care, then you are selfish. So ओके it's a huge difference if you go deep, but it's a very thin line, very thin line. या people एग्जैक्टली may मैम people may blame you that you are selfish, but then you have to decide कि क्या मेरे इस एक्ट से, आप इमोशनल छोड़ो, इमोशनल आई थिंक पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी का इमोशनल ड्रामा, उसको हम साइड में रखते हैं. Other than that, are you causing some physical pain to your family? Are you causing some harm to the society? Are you spreading a wrong message around you? Ask questions. अगर उन सबका आंसर no में आता है, that means it is not selfish act. It is ओके only a self-care act. That's ओके it. And then start working on it. ओके ओके ये बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल पॉइंट आपने बोला, बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल आर यूटिलाइजिंग एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन, नेवर गिव अप वगैरह गलत Exactly. काम करने के लिए. हाँ. ओके सो लाइक, और कोई उनसे बोलता है कि देखो ऐसा मत करो, वी शुड नॉट लिसन टू हेटर्स, वो इस एंटरप्रेन्योर ने कहा था, दे आर लाइक ट्विस्टिंग द थियरीज Exactly. फॉर द रॉन्ग थिंग. Because we like to follow the trend. 90% या of the, in fact 95% of the people follow the trend. अभी भी young entrepreneurs या creative thinkers are only the 5% of the lot जो कुछ यस नया यस करते हैं. उनको वो यस 95% फॉलो कर रहे हैं, तो यस वो तो हो गई. एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो एक्चुअली. अगर मेरा एक फॉलोअर्स ग्रुप है, तो मैं जो भी बोलूंगी दैट विल बी करेक्ट फॉर देम ना. मैंने गलत भी बोल दिया, यू मैम. कैन हैव अ लाइक, कितने सारे एग्जांपल्स अभी न्यूज मीडिया एवरीवेयर इज फ्लडेड विद दैट. Okay, okay. Ma'am, actually, sometimes we have to show someone we are not. Okay. Like, कभी कभी is it like stress ऐसे भी होता है कि we are trying to become someone which we are not? हाँ, दैट इज द फेस, दैट्स अ मास्क ऑन विच यू आर वेयरिंग. ओके, यहाँ पे मैं एक Okay. इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो या आपके मेरे जैसे, आप तो खुद ही एंटरप्रेन्योर हो, मेरे जैसे लोग हो या किसी भी नहीं मैम. किसी भी तरीके के लोग हो, that is how we have been conditioned most of the times, that we have to Okay, okay, portray ma'am. Let me ourselves. let, Yeah, let let me make this question little difficult. yeah. Okay, अच्छा. so like, ठीक है. okay, like I'm content creation का हम ले लेते हैं. Like you have put some kind of videos which are liked by many people. Okay, but you personally think it was not that good. कि इतने likes आए. Then you started putting some very valuable thing that you think it will help a lot, but people were not like liking or giving views. Okay, now you have two options. Either मैं जो चाहती हूँ वो करूँ, भले लाइक आए व्यूज आए छोड़ो, या तो लोगों के लिए, लोगों के फायदे की चीज मैं बनाऊं और वो मतलब कंटेंट डाल दूं.
Okay, I think this very much relate to my own YouTube channel journey also, because of course mental wellness या psychology या positive tips are not very in fashion Yeah. when it comes to the entertainment or when it compares to the Yeah. entertainment. तो ये क्वेश्चन आई गेस मैं बहुत बार अपने आप से भी पूछती हूँ कि मैं ये बना ही क्यों रही हूँ जब पीपल आर नॉट वॉचिंग इट, देर इज नो पॉइंट, देर आर Okay. हार्डली अ सेट ऑफ पीपल जो शायद रिलेट कर पा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग अ मास्क, जिनको लगता है कि उनको कोई इशू नहीं है, सब ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, एंड एक्चुअली दे आर दी वंस हु आर क्रिएटिंग द इश्यूज विद द अदर्स, दैट्स अ डिफरेंट केस, Okay. बट उनको ऐसा लगता है, सो दैट्स द स्ट्रगल यू हैव, बट Yeah. देन एट द एंड ऑफ द डे whenever you go to the sleep, before that just ask yourself, जो मैं हमेशा करती हूँ और मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, ask yourself that how was your day, will it was it according to your own inner morals which you have set in, आपने जो आज भर दिन भर में किया क्या वो आपकी अंतरात्मा के साथ मैच करता है, योर ओन Yeah. मॉरल्स, योर ओन एथिक्स, तो यू गेट द आंसर। मैं भी बना सकती हूँ ऐसे एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस, बट दैट विल नॉट रेजोनेट टू माय ओन नो Yeah. वेवलेंथ्स, माय ओन Yeah. एनर्जीज, सो आई विल नॉट बी हैप्पी इन द एंड। मुझे शायद पॉपुलैरिटी भी मिल जाए, मैं एक क्रिएटर भी बन जाऊं वेरी फेमस, बट विल दैट गिव मी द सेटिस्फेक्शन? नो। Yeah. So Okay. that we have to actually constantly check in with ourselves. ऐसा नहीं है कि जो लोग switch करते हैं एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी, they only go for the popularity. कभी कभी लोगों को जान के पहचान के आपको समझ भी आता है कि हाँ शायद ये मेरी कॉलिंग है, शायद मैं ये ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं इसमें एक बार ट्राई कर लेता हूँ। That also Okay. happens. We should not judge anyone for that. But contentment is important. At the end of the day, if it is syncing with you, then it is a right thing. If it is not, Okay. then somewhere something is wrong. Okay. Okay. Ma'am, but what about those people? Like, अगर मैं आपकी बात करूँ, like I have seen some of the videos. You know, they are like very top class of videos. But the problem is कि like followers जो होते हैं, अगर मतलब मैं पहली बार आता हूँ और मतलब आपकी प्रोफाइल देखता हूँ, तो मैं बिफोर वॉचिंग योर वीडियोज आई वॉच द नंबर्स। अच्छा, Correct. इसको मतलब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक उतना कंटेंट उतना अच्छा होगा। देन दे सी सम पीपल ओके 5,000 10,000 फॉलोअर्स, इसका तो अच्छा ही होगा। बिफोर वॉचिंग द Exactly. कंटेंट दे थिंक ये अच्छा होगा या बुरा होगा। सो लाइक True. उसके लिए आपको नहीं लगता कि फॉर दोज टाइप ऑफ पीपल विच आर वेरी लार्ज इन नंबर, उनके लिए आपको मतलब कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा, मतलब उनको पहले अट्रैक्ट करो और बाद में, डू यू थिंक लाइक दैट? मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट व्हेन आई स्टार्टेड दिस इंस्टाग्राम थिंग ना, जब मैंने ये सिंपली पल्लवी का पेज बनाया एंड विद दिस वेरी क्लियर मोटिव दैट आई हैव टू स्प्रेड द मेंटल अवेयरनेस थिंग, तो आई वांटेड टू ग्रो बैडली, कि ज्यादा से ज्यादा ओके। लोगों तक पहुंचे मेरे मैसेज, तो फॉलोअर्स आ रहे हैं, दी नंबर्स आर इंक्रीजिंग, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं भी लोगों को रिक्वेस्ट भेज रही हूँ ना, कम कम ओवर माय पेज, हैव अ लुक, आई डू दिस, आई डू दैट, and over a period of time I realized that it is of no worth. If you're doing ओके। your content right, if you are doing what is syncing with you from inside, या। people will follow you. It's like a magnet. या। And it's ये एग्जैक्टली। एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काम करता है, इट्स लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ। मैं आज आपके या। साथ लाइव कर रही हूँ, मे बी योर पीपल विल ऑल्सो बी वॉचिंग मी, मे बी दे लाइक या। माई कंटेंट, मे बी दे डोंट, so whosoever या। likes my content will definitely come to me, and who एग्जैक्टली। is not coming to my content or who's not watching my content, I guess they have no interest as of now. या। So I don't need to deviate my main goal for those people who actually have no interest, एग्जैक्टली मैम। right? Because मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ में विजन क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जब फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन, अभी मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मेरे को उतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते हैं मेरी फीड पे, सो अच्छा। नाउ आई नो दैट दिस इज ओनली अ नंबर गेम। जो पहली बार शायद आपकी प्रोफाइल पर आ रहा है वो देख के खुश हो सकता है कि इट्स अच्छा, इतने लोग हैं, इतने कंटेंट आए हैं, ये आए, but the people who's actually going through your profile,
they may decide that it is worth for them or no. Simple. Okay. So I've given up on this notion that I have to create the content for the people to like me. मैंने reverse कर दिया Okay. उसको, that I will create the content and people will follow if they like it. Okay. Simple Someone funda. said something. I followed you, ma'am. Really, your content is good. Thank you. Thank you. But what I'm trying to say, everybody who is here on Insta or on any social media, they have come with a purpose, Yeah. majorly to be famous. But Yeah. instead, to be famous, have a better and a clearer purpose to be more effective on your work, to be Yeah. more truthful with your work, and to Yeah. send a very, very strong message. वो डेविएट नहीं Agree. होना चाहिए, वो आप उसके साथ रहोगे, सक्सेस विल फॉलो यू, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो Yes. तरसों आएगी आएगी. Okay, okay. Yes, ma'am. I completely agree with you. Like some of the times we have to just maintain the consistency and the right people will come. और बहुत बार मैम एग्जैक्टली. ऐसा भी होता है कि like I am very like okay kind of person. I come to a profile. I see okay. So mental wellness coach. I don't need her right now. But कभी एग्जैक्टली. कुछ होता है, कभी मेरी लाइफ में बाद में कुछ होगा, and that time I will think of you, come to you. एग्जैक्टली. तो अगर उस सी वो प्रोसेस के दैट इज अंदर दी आपने वेरी. बंद कर दिया, एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. या प्लीज यू कंटिन्यू, मैं उसके बाद बोलती हूँ, आप या बताइए. लाइक मतलब अगर मैं अभी आ रहा हूँ कुछ नहीं है, मतलब मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 महीने के बाद मैं आ रहा हूँ जब मुझे जरूरत है, लेकिन उस 2 महीने के चक्कर में अगर आपको लगा कोई चाहता ही नहीं मेरे कंटेंट को, चलो बंद करते हैं, देन वी आर लाइक आई एम एज अ कंज्यूमर आल्सो एज अ लूजर और यू एग्जैक्टली. आल्सो. एग्जैक्टली. आई थिंक आपने बहुत सिंप्लीफाई तरीके से ओमकार ये समझा दिया है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, आई गेस दैट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ यू आल्सो. आप बहुत ही माइन्यूट लेवल पे समझा देते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली द थिंग. अगर मैं अपना, जिसको हम अभी नीश और माइक्रो नीश डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं अपना नीश छोड़ दूंगी जस्ट टू बी फेमस और जस्ट टू अट्रैक्ट मोर फॉलोअर्स, आई थिंक आई बी लूजिंग माई ओन आइडेंटिटी over a period of एग्जैक्टली time. मैम, एग्जैक्टली. And there's a big difference between the entertainment and a focused with the purpose sort of people. Entertainment में you can have any sort of no genre. आप या. किसी से भी उठा के आप मैसेज दे सकते हो. But when you have यस. specified that you are only going to have a mental wellness issues या सिर्फ technical issues या सिर्फ Instagram boosting या कुछ भी ऐसा आप दिखाओगे या आपने एक पर्पस बनाया है, तो you have to stick with that. यस मैम, एग्जैक्टली. Otherwise, people will not have the clarity. आज नहीं तो कल, जैसे आपने बोला, somebody may come back again. कि अच्छा मैं वो या. पोस्ट देखता हूँ, because everybody is going through one or other thing in the life. कोई ना कोई यस मैम, रेजोनेट तो करेगा ही. एग्जैक्टली मैम. लाइक मैम लाइक लास्ट 2 days में मतलब अराउंड 50 पीपल अराउंड फॉलोड मी, एंड उसमें से कुछ लोगों को मैं मतलब फॉलो करने के बाद मैसेज भेजता हूँ लाइक हाउ आर यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. तो जब मैं मैसेज भेजने गया था तब मुझे लगा कि ऑलरेडी मैंने उनको मैसेज भेज दी थी. दे वर द पीपल हु फॉलोड मी, देन अनफॉलोड फॉर सम रीजंस बिकॉज आई वाज नॉट फॉलोइंग देम बैक, एंड दे फॉलोड मी अगेन नाउ. Exactly, Okay, because now so your content is worthy enough, I guess. Now they know yeah, कि there is no competition in this, कि वो मुझे yeah. follow for follow का game जो Instagram पे सबसे ज्यादा चलता है, कि it's like वो content अच्छा है, at least whenever I'll be on Instagram मैं उनका content देख सकता हूँ. तो and Exactly, ma'am. that's a very big compliment actually. जब Yes, आप, ma'am. जब लोग आपको follow करते हैं without having this thing कि आप उनको follow back करें, because Yes, now ma'am. they are seeing the Exactly. value in your content actually. Exactly. Actually, I have a series called Simplify. Let's Simplify. You know, it's a अच्छा. series of I think 14 सिंपली videos. पल्लवी, मैंने बोला व्हाट इज दिस यार, ये तो मुझे पता ही नहीं है. Okay, let's simplify series where I मतलब complicated चीजों को मैं simplify way में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Your name is also simply Pallavi. Like ये मुझे पता है कि मैंने सिंपल क्यों यूज किया, आपने क्यों यूज किया मैम? मैं अभी वही बोलने वाली थी, मुझे लगा आपने मेरे नाम से सीरीज बना लिया, मुझे पता ही नहीं चला. नहीं, नहीं. आई थिंक जब मैंने ये शुरू किया था, फर्स्ट रीजन आई बी ऑनेस्ट, मुझे ये अच्छी राइमिंग लगी, सिंपली पल्लवी, तो वो मैच कर रहा है. Okay. बिकॉज वॉट माई नोशन वॉज, जब मैं मेंटल वेलनेस के इंस्टाग्राम पेज, आई हैव माई ओन पर्सनल पेज जो रिस्ट्रिक्टेड है इंस्टा पे, और मैंने ये Okay. प्रोफेशनल ओपन रखा हुआ है फॉर दी पीपल. तो आई हैव अ वेरी क्लियर विजन कि मुझे ये Okay.
इज टू स्प्रेड दी मेंटल अवेयरनेस करना है। एंड जब ओके सिंपली ऐड करने का रीजन यही था दैट आई हैव टू सिंप्लीफाई दीज नोशंस इन अ ब्रेक। मेंटल ओके वेलनेस, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ टैब। हमको या उसको बहुत ही इजीली एक्सेप्ट करना है that या this is a part of our life. Every struggle what we are facing is something to tell us. यस मैम Every disease which is occurring to us, there is a hidden meaning behind that. या तो सिर्फ ऐसे ही वो बोलते हैं ना, आई बिलीव इन इंट्यूशन ओमकार, सो दैट इज द इंट्यूशन या विच हैड कम टू मी। एंड आई यूजुअली जितने टॉपिक्स भी बनाती हूँ वो मैं मेडिटेशन करती हूँ और दिमाग में आता है और मैं बना देती हूँ। तो ऐसे ही ओके मैंने ये सिंपली पल्लवी बना दी, मुझे लगा वाह दिस इज राइमिंग, दिस इज गुड। ओके बाय द वे मैम आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक कि या मतलब आपको अभी हिप्नोटिज्म आता है सो क्या मतलब हाँ, घर पे किसी से काम करवाने के लिए आप कभी करती हो? नहीं नहीं, आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई एम श्योर ये क्वेश्चन जोक का ही होगा बिकॉज एथिकली वी कैन नॉट, या एथिकली आई नो वी शुड अच्छा नॉट। एथिकली एंड यस, एथिकली वी शुड ओके नॉट। जैसे मैं एक ओके इमोशन कोड हीलर हूँ, आई कैन गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड कैन चेक व्हाट इज हैपनिंग विद यू, बट एथिकली आई शुड नॉट, क्योंकि वो करेक्ट नहीं ओके है, बिकॉज आपने मुझे परमिशन नहीं दिया है वो करने का। तो मैं कैसे अच्छा जा सकती ऐसा हूँ कि होता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, no? ओके So I think when it comes to ओके us, ethics are most important. यस एग्जैक्टली मैम So लाइक ये हाँ, मतलब नई कुछ बात पता चली एंड हेड्स ऑफ टू पीपल लाइक यू हु स्टिल मतलब वो फॉलो कर रहे हैं एथिक्स थैंक्स टू पीपल लाइक आई यू थिंक हमारे प्रोफेशन में हर कोई करता है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अगर मैं मॉरली करेक्ट नहीं होगी, इसी जैसे हम सोल की बात कर रहे थे या सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, अगर मैं ट्रूथफुल नहीं होंगी ना, आई विल नॉट गेट द वॉइस फ्रॉम माय हायर सेल्फ एंड आई विल नॉट बी ओके एबल टू परफॉर्म। दैट्स वेरी ओके सिंपल। ओके बिकॉज अगर मेरी थॉट्स आर मलाइंड, मेरी थॉट्स अगर नेगेटिव हैं, या नो किसी से राज निकलवाना है, किसी को नो हिप्नोटाइज करके अपना काम निकलवाना है, ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगी। एक या दो बार शायद ओके कर भी दूं, बट एट द लॉन्गर रन इट विल नॉट बी, ओके नॉट इफेक्टिव not at all. Ethically I cannot. I think that's the very first ओके thing which has been या taught to us, कि ओके हम किसी की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। ओके ये थोड़ा मतलब मुझे नया कुछ पता चला इसके बारे में इवन मैं तो अपने हस्बैंड पे भी नहीं की, बताओ, तो उस पर तो मेरी पूरी परमिशन है। आई डिड नॉट इवन ट्राई क्योंकि उसने दी नहीं। आई डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट एनीथिंग। ओके ओके इट्स अप टू योर हस्बैंड अरे ओके हाँ। so actually ma'am with regards to this actually there were people how मतलब आपके प्रोफेशन में is spirituality or spiritual things spiritual process is a competition or it's a collaboration? इट इज अ कोलैबोरेशन, स्पिरिचुअलिटी कांट बी अ कंपटीशन। और वो आई थिंक हम सबको फॉलो करनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ एनी प्रोफेशन। And more than Okay, being religious, I think I very strongly believe in being spiritual, because उसमें आपकी कोई boundaries नहीं है, उसमें आपको कोई exactly, restrictions नहीं है, no, you are one, the exactly. world is one. So Yes, ma'am. spirituality, and it helps also because it widens Okay, your thinking, it opens up your heart, yeah, आपका love emotion, care emotion और generate होता है। So yeah, spirituality can't be any competition for anyone. It has to be exactly, a ma'am. collaboration, a support system for you. Okay, okay, ma'am. Have you tried inner engineering? No, I wish. Okay, I was a science graduate though, computer science graduate, and then I okay, did MBA, क्योंकि मैं जर्नलिज्म करना चाहती थी। उस टाइम जर्नलिज्म का भूत था और पापा ने करने नहीं दिया। okay. No, no, not engineering, inner engineering. Inner engineering. Inner engineering is a terminology, yaar. Inner engineering is everything which you do at your inner work. That is inner engineering. Okay, okay, So, okay, okay, the meditation is inner engineering. The yoga is inner okay. engineering because it opens up your heart. The gratefulness, the gratitude practices, the charity, the nature path, the moon gazing, everything is inner engineering. When it comes Yeah. to work with your inner child, जो आपके अंदर जो बच्चा बैठा है और जब आप उससे बात करते हैं, that is inner engineering. Okay, ma'am. If we want to learn, okay, now.
25 seconds इज दैट, ओके। बट लॉट मतलब बहुत सारा मतलब वैल्यू ऑलरेडी आपने दिया है। एक अराउंड 10 सेकंड्स में आप कोई मैसेज देना चाहती है इन वन लाइन? अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलूंगी जिस पर हमने आज की चैट शुरू किया था, वॉइस कॉल्स, आई गेस ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स, प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ, फेलियर्स आर जस्ट टेम्पररी। सेल्फ डाउट जब आप पर होता है तो आप पर स्ट्रेस आता है।